Assalamualaikum to everyone. I am Mavish. Welcome to my channel Mavish Bhatti. In our today's video, we will study about shapes and arrangement of bacteria. But before we start to discuss about shapes and arrangement of bacteria, it's very necessary we have to little bit knowledge about bacteria. What are bacteria basically? So let's discuss about bacteria. Bacteria are unicellular organisms. Okay? Uni means one or single. Cellular means cell. Unicellular organisms are those organisms that contain one cell are called unicellular organisms. And bacteria are one of them that contain one cell. The singular of bacteria is bacterium. Okay? The bacteria itself is plural, while the bacterium word is singular. The bacteria are prokaryotes and their organisms are prokaryotic organisms. The bacteria rely on binary fission for propagation. That means for the multiplication, bacteria require a method. That method is known as binary fission. It is a simple process in which a cell just needs to grow twice its starting size and then split into 2, from 2 to 4, 4 to 8, add to 16, and so on. That is known as binary fission. Come to the next slide. There are 12 shapes of bacteria. Rod-shaped bacteria, spherical-shaped bacteria, helical-shaped bacteria. Rod-shaped bacteria, these are the bacilli that are rod-shaped bacteria. Spherical-shaped bacteria, these are cocci, these are spherical-shaped bacteria. Helical, these are the helical-shaped bacteria. Monomorphic bacteria, pleomorphic bacteria, filamentous bacteria, star-shaped bacteria, box-shaped bacteria, appendaged bacteria, shaded bacteria, rectangular shaped bacteria, star-shaped bacteria. These all are the names of shapes of bacteria. Now, what are the rod-shaped bacteria? Those bacteria which are bacilli are called rod-shaped bacteria. वो बैक्टीरिया जो बैसिलाई होते हैं उसे हम कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस. Now what are the spherical shaped bacteria? Those bacteria which are cocci shaped are called spherical shaped bacteria. वो बैक्टीरिया जो cocci shape होते हैं उसे हम कहते हैं spherical shaped bacteria. For example, Staphylococcus. Now what are spiral shaped bacteria? Those bacteria which are helical are called spiral shaped bacteria. वो बैक्टीरिया जो helical होते हैं, that means कामा shape होते हैं, उसे हम कहते हैं spiral shaped bacteria. For example, Equiospirillum. What are monomorphic bacteria? Mono means one or single, morphic means shape. That means those bacteria which contain only one shape are called monomorphic bacteria. वो बैक्टीरिया जिनका एक ही शेप होता है, उनका शेप चेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया. जो मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं, इस बैक्टीरिया का एक ही शेप होता है कि शेप चेंज नहीं करते. Now what are pleomorphic bacteria?
those bacteria which have ability to change their shape and size in different environment are called pleomorphic bacteria. Pleo means more or many. Morph means shape. मीन्स ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना शेप एंड साइज चेंज करते हैं, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जो अपना शेप चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनिया। व्हाट आर फिलामेंटस बैक्टीरिया? Those bacteria which are very long thin filament shape are called filamentous bacteria. वो बैक्टीरिया जिसमें बहुत ही पतला फिलामेंट होता है लेकिन वो लॉन्ग होता है, बहुत ही पतला फिलामेंट शेप होता है, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया। Some filamentous bacteria form branching filaments. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया, उनमें ब्रांचिंग की तरह फिलामेंट्स होती है। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइसीलियम। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसीड्स। व्हाट आर स्टार शेप्ड बैक्टीरिया? ओके, दोज बैक्टीरिया which look like stars are called star shaped bacteria. वो बैक्टीरिया जो स्टार्स की तरह हमें दिखते हैं उसे हम कहते हैं स्टार शेप बैक्टीरिया। दिस इज डायाग्राम फॉर द स्टार शेप बैक्टीरिया। अब ये स्टार की ही तरह के शेप के होते हैं, जैसे ये 5 कॉर्नर हैं स्टार की तरह, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल स्टीला ह्यूमोसा। What are box shaped bacteria? अब box shaped bacteria कौन से होते हैं? These are box shaped bacteria with straight edges and sharp 90-degree at the corner. 90-degree angle at the corner. ये जो बॉक्स शेप बैक्टीरिया होते हैं इनकी डिग्री जो होती है, ये जो कॉर्नर है इनका, इनकी एड्स पे जो कॉर्नर है यहाँ पे इनकी जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है। द स्मॉलर सेल्स ऑफ बॉक्स शेप बैक्टीरिया आर स्क्वायर। जो छोटे बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो स्क्वायर की तरह होते हैं, जैसे कि ये है, ये स्क्वायर की तरह है। वाइल द लार्जर सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। और जो बड़े सेल होते हैं बैक्टीरिया के, बॉक्स शेप बैक्टीरिया के, वो रेक्टेंगुलर की तरह दिखते हैं, जैसे कि ये हो गया। अब छोटे सेल जो हैं वो स्क्वायर शेप दिखते हैं, जैसे ये, लेकिन बड़े सेल रेक्टेंगुलर की तरह। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे रेक्टेंगुलर की साइज़ बड़ी होती जाएगी। व्हाट आर अपेंडेज बैक्टीरिया? अपेंडेज बैक्टीरिया कौन से होते हैं? Those bacteria which contain long tube in the form of bud, stalk or hypha are called appendage bacteria. वो बैक्टीरिया जिनमें लॉन्ग ट्यूब होता है बड के फॉर्म में, स्टाक के फॉर्म में या हाइफो के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं अपेंडेज बैक्टीरिया। जिससे कि ये बैक्टीरिया है अपेंडेज बैक्टीरिया। अब इनका जो लॉन्ग ट्यूब है ये बड के फॉर्म में, ये बड है, ये जो इसके साथ अटैच है सेल के साथ, दिस इज कॉल्ड बड। अब ये स्टाक की तरह भी हो सकती है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये बड की तरह भी हो सकती है, ये हाइफा की तरह भी हो सकता है। व्हाट इज शीटेड बैक्टीरिया? Bacteria are characterized by filamentous arrangement of cell enclosed in sheet. अब जो filamentous arrangement होती है बैक्टीरिया की, वो क्लोज होती है शीट में। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं शीटेड बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल स्फेरोटाइलस natans।
What are rectangular shaped bacteria? The bacteria which are rectangular in shape are called rectangular shaped bacteria. Simply rectangular shaped bacteria वो होते हैं जिन बैक्टीरिया का शेप जो है वो रेक्टेंगुलर की तरह होता है. फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है जिसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होता है. होलरक्यूला मैरिस्मॉर्टी. What are stalk-shaped bacteria? Those bacteria which possess stalk on the end of cell are called stalk-shaped bacteria. वो बैक्टीरिया जिनका जो सेल होता है उनका जो एंड पोर्शन होता है वहाँ पे अगर स्टाक जो है वो अटैच होती है तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टाक शेप बैक्टीरिया. And now the arrangement of bacteria. Okay, for the arrangement of bacteria, number one, that is a spherical bacteria. Now, what are spherical bacteria? Those bacteria which are circular or round or spherical in shape are called cocci. जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं सर्कुलर, राउंड मतलब सर्किल होते हैं, राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, या फिर उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये कॉक्साई हैं. जो कॉक्साई बैक्टीरिया होते हैं वही स्फेरिकल होते हैं. और जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं इनकी 6 अरेंजमेंट होती हैं, 6 तरह की अरेंजमेंट होती हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया की. अब ये नाम है इनकी अरेंजमेंट के. नंबर ए, मोनोकोकस बैक्टीरिया. ओके, मोनो फॉर वन, कोकस यानी कि सर्कुलर होगा, राउंड या स्फेरिकल की तरह होगा, बैक्टीरिया. अब सिंगल सर्कुलर शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनोकोकस बैक्टीरिया. इसका मतलब है एक ही राउंड यानी कि एक ही सर्कुलर शेप होगा, सर्किल होगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही होंगे, तो उसे हम कहते हैं मोनोकोकस बैक्टीरिया. अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ. अब जैसे कि ये सर्किल हो गया. ओके, ये हो गया सर्किल. अब ये हो गया सर्किल, दैट इज मोनोकोकस बैक्टीरिया. नंबर बी, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया. डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कॉक्साई होते हैं लेकिन दैट अकर इन पेयर. मोनोकोकस में एक सर्किल था लेकिन डिप्लोकोकस में 2 जो है सर्किल हो जाएंगे, यानी कि कॉक्साई बैक्टीरिया दैट अकर इज पेयर आर कॉल्ड डिप्लोकोकस. ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल. ओके, यानी कि 2 कॉक्साई हैं पेयर के फॉर्म में, दैट इज डिप्लोकोकस बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. नंबर सी, टेट्राड बैक्टीरिया. Those bacteria that are arranged in group of 4 cells are called tetrad bacteria. वो बैक्टीरिया जिनमें 4 सेल होता है, मतलब ग्रुप ऑफ 4 सेल हो लेकिन वो कॉक्साई हो. जैसे कि मोनो में एक ही सर्किल था, डिप्लोकोकस में 2 यानी कि पेयर में हो गए, टेट्राड में 4 सर्किल होंगे तब ग्रुप ऑफ 4 सेल बनेगा. इस तरीके से. ओके, फॉर एग्जाम्पल टेट्राजीनोकोकस. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेट्राड बैक्टीरिया.
Hope you got it. Number D, Streptococcus bacteria. Those bacteria that are arranged in chain form are called Streptococcus bacteria. वो बैक्टीरिया जो चेन के फॉर्म में होते हैं, ये भी कॉक्साई होते हैं लेकिन चेन के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस. अब ये चेन के फॉर्म में किस तरह से होते हैं, जिससे कि ये हो गया एक सर्किल, दूसरा, मतलब ये चेन बनती जाएगी. ओके, सो ऑन. अब ये चेन के फॉर्म में जो कॉक्साई हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. Number E, Staphylococcus bacteria. Those bacteria that form grape-like clusters are called Staphylococcus bacteria. वो बैक्टीरिया जो ग्रेप-लाइक क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं उसे हम कहते हैं Staphylococcus bacteria. फॉर एग्जाम्पल Staphylococcus aureus. अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो Staphylococcus बैक्टीरिया होते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है ये कोक्साई हैं लेकिन ग्रेप की तरह. इनका क्लस्टर बना होता है इस तरीके से. नंबर F, सार्सिना बैक्टीरिया. Those bacteria that occur in group of 8 cells are called सार्सिना बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया जिनके स्ट्रक्चर में 8 सर्किल हो, मतलब ग्रुप ऑफ 8 सेल हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं सार्सिना बैक्टीरिया. अब इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये हो गया एक सर्किल, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, फिर ये पांचवा, ये हो गया छठा, ये सातवां और ये आठवां खुद. ओके, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 8 cells and these bacteria are called Sarsina bacteria. For example, Sarsina urantica. नंबर 2 अरेंजमेंट. पहली अरेंजमेंट स्फेरिकल थी और नंबर 2 अरेंजमेंट रॉड शेप बैक्टीरिया. द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई. जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उसे हम कहते हैं बेसिलाई. The rod shaped bacteria are also called cylindrical shaped bacteria. Cylindrical shaped bacteria भी हम कहते हैं rod shaped bacteria को. There are 3 categories of rod shaped bacteria. Rod shaped bacteria की 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं. कैटेगरी A में जो आते हैं Bacillus बैक्टीरिया, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं मोनोबैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें एक यानी कि सिंगल जो है वो बैसिलस होती है. तो मोनोबैसिलस बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया दैट अकर एज सिंगल रॉड इज कॉल्ड बैसिलस. वो बैसिलस या फिर वो मोनोबैसिलस जिसमें एक सिंगल रॉड ही होती है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल बैसिलस सीरियस. अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सिंगल रॉड, ये हो गई सिंगल रॉड. ओके, दिस इज अ सिंगल रॉड. नंबर 2, डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया. Those bacteria that occur in pairs and these 2 cells do not separate from each other are called Diplobacillus bacteria.
डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया वो होते हैं जो पेयर के फॉर्म में हो, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो लेकिन पेयर के फॉर्म में। और ये जो है एक जो पेयर होता है ये एक दूसरे से अटैच होता है। अब अटैच किस तरीके से होता है, ये रॉड शेप एक पेयर के फॉर्म में होगा तो दूसरा यहाँ से ही स्टार्ट होगा, मतलब ये सेपरेट नहीं होंगे, ये अटैच होंगे। ओके, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल Coxella burnetii. Coxella burnetii is one of the example for the Diplobacillus bacteria. Number 3 is Streptobacillus bacteria. Streptobacillus bacteria are those bacteria that occur as elongated chain are called Streptobacillus bacteria. अब इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये इलोंगेटेड रॉड शेप होंगे। ये इस तरीके से ओके। This is structure of Streptobacillus bacteria. For example, Streptobacillus thales is one of the example for the Streptobacillus bacteria. Number 4, Trichomes bacteria. Those bacteria that are arranged in chain form are called Trichomes bacteria. वो बैक्टीरिया जो चेन के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये चेन हो गई, बिल्कुल ही सीधी चेन। ओके, लेकिन ये चेन जो है इनकी अरेंजमेंट बहुत लार्ज होती है, बहुत लार्ज चेन होती है। दिस इज ट्राइकोम्स बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल सेप्रोस्पाइरा स्पीशीज़। अब सेप्रोस्पाइरा स्पीशीज़ जो इसका कॉमन एग्जाम्पल है। नंबर 5, पैलिसेड्स बैक्टीरिया। ओके, पैलिसेड्स क्या होते हैं? सेल्स इन अ चेन आर अरेंज साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ एंड टू एंड एंड आर पार्शियली अटैच्ड आर कॉल्ड पैलिसेड। अब पैलिसेड सेल्स जो होते हैं वो चेन के फॉर्म में तो अरेंज होते हैं, लेकिन वो चेन साइड बाय साइड अरेंजमेंट होती है, एंड टू एंड अरेंजमेंट नहीं होती। किस तरीके से? जैसे कि ये, अब इनकी साइड में दूसरा, ये इनका एंड पोर्शन ये वाला है। ओके, यहाँ से हम दूसरा नहीं स्टार्ट करेंगे, ये इनकी साइड है। इनकी साइड बाय साइड जो अरेंजमेंट होती है उनको हम पैलिसेड कहते हैं। एंड आर पार्शियली अटैच्ड आर कॉल्ड पैलिसेड। अब ये पार्शियली अटैच्ड इस तरीके से होते हैं कि जैसे ये हो गया, अब ये दूसरा हो गया, अब ये पार्शियली अरेंजमेंट भी होती है इनकी इस तरीके से, लेकिन वो पार्शियली अरेंजमेंट भी साइड बाय साइड ही हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कैटेगरी बी, कैटेगरी ए कंप्लीट हो गई, नाउ कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 1 है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस आर द बैक्टीरिया the mixture of coccus and bacillus shaped bacteria are called cocobacillus. अब जो कोकस होते हैं और जो बैसिलस होते हैं दोनों को अगर साथ मिलाएंगे तो कोकोबैसिलस बनेगा। मतलब ये मिक्सचर होता है
कोकस एंड बैसिलस का। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब ये मिक्सचर है तो ये सपोज़ रॉड शेप हो गया, बैसिला है, तो यहाँ से हम इसको कॉक्साई की तरीके से यानी कि सर्किल कर देंगे। ये यहाँ से इसकी जो कॉर्नर है यहाँ से हम इससे सर्किल कर देंगे, तब जाके ये होगा कोको बैसिलस। इस तरीके से ओके। यानी कि ना तो ये कोकस से पूरा सर्किल भी नहीं है, ना ही ये रॉड है। रॉड और सर्किल यहाँ से कॉर्नर से है, तो मिक्सचर हो गया कोको बैसिलस। कैटेगरी सी में है विब्रियो बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया that are comma shaped but not fully curved rod are called vibrio bacteria। जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं ये कामा शेप होते हैं, लेकिन मतलब इनकी जो रॉड होती है वो पूरी ही बैंड नहीं हुई होती। मतलब रॉड तो वैसे ये है, लेकिन ये जो है इस तरीके से होता है कामा शेप। ओके, ये कामा शेप हो गया। For example, Vibrio cholera. So Vibrio cholera is one of example for Vibrio bacteria. Number 3, spiral bacteria. Those rod-shaped bacteria which have more than one twist in the cell are called spiral bacteria. स्पाइरल बैक्टीरिया हम उसे कहते हैं जिनमें ये भी कामा की तरह ही होते हैं, हेलिकल होते हैं, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा ट्विस्ट होंगी इस तरीके से, यानी कि 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक नहीं होगी। These are the spiral bacteria. For example, Treponema, that is common example for spiral bacteria. There are 2 types of spiral bacteria. Number 1, Spirillum. Number 2, Spirochetes. Spirillum bacteria, the bacteria with ridged spiral structure. ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत रिच होता है, सख्त होता है। दीज बैक्टीरिया आर एरोबिक। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक होते हैं, यानी कि एयर की प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वा स्पिरिलम, जैसे कि इक्वा स्पिरिलम एग्जाम्पल है स्पिरिलम का। नंबर बी, स्पायरोचीट्स, द बैक्टीरिया विथ फ्लेक्सिबल स्पायरल स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दीज बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एनारोबिक। ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं या फिर फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोचीटा, जैसे कि स्पायरोचीटा। स्पिरिलम एंड स्पायरोचीटा, स्पिरिलम एंड स्पायरोचीट्स दोनों में मेन डिफरेंस वो ये है कि जो स्पिरिलम होता है उनकी जो उनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें 2 ट्विस्ट होते हैं इस तरीके से, लेकिन जो स्पायरोचीट होते हैं उनमें 2 से ज़्यादा होते हैं। अब 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये मेन डिफरेंस है स्पिरिलम एंड स्पायरोचीट में, और दोनों ही स्पाइरल बैक्टीरिया में आते हैं। Thank you so much guys for watching my video. Hope you like my video and please subscribe my channel. Thank you.